Hello. So, good morning, everybody. Good morning, In ma'am. last class, I have given some questions to you. Any students facing any problem to draw the molecular orbital diagrams for diatomic molecules? No, ma'am. Okay. No, You ma'am. can write some questions also. Today is a tutorial class. You can write down some questions related to chemical bonding. Please note down the question. Question number 1. What is ये मैम अभी करना है hydrogen क्वेश्चन? bonding? Write the question number 1. What is the hydrogen bonding? Explain the suitable examples. Question number 2. Explain intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. Explain intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. With suitable example. Next question. Give reason. Next question. In third question you write the give reason. Number 1. The boiling point of water is higher than that of hydrogen fluoride. अगर किसी बच्चे का छूट जाता है तो you don't worry, this is a recorded class, so I'll send you the link. You can write down after the class. Boiling point of water is higher than that of the hydrogen fluoride. Number 2, इसी में give reason में write number 2. Why does chlorine atom not form hydrogen bond in liquid HCl? Why does chlorine atom not form hydrogen bond in liquid HCl? Next question, why glycerol is more viscous than ethanol? Why ethanol is more viscous than glycerol? इसका आंसर क्या होगा बेटा? You will have to explain this on the basis of the hydrogen bonding. Okay? Because in glycerol there are 3 hydroxyl group, and ethanol there is 1 hydroxyl group. So the number of hydrogen bonds in glycerol molecule will be 3, whereas in ethanol is 1. That's why the greater extent of hydrogen bonding in glycerol make it a viscous liquid. Similarly, the question I have given you, in which you have to
tell that boiling point of water is higher than that of HF? So what will be the answer of this question? Can any student tell? कोई बच्चा बता सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देखिए HF मॉलिक्यूल में क्या है, HF जब आप लिखेंगे तो एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितने, मतलब एक HF मॉलिक्यूल दूसरे दो मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। बिकॉज HF, एक F जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ अटैच होगा और H जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के एक साइड से F के साथ। सो एक HF मॉलिक्यूल टू डिफरेंट HF मॉलिक्यूल के साथ मैक्सिमम इट कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वेयर इन वाटर, वाटर में क्या है, O भी फ्री है आपका, बेन शेप है, तो दो H मींस अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। So the extent of hydrogen bonding is more in water molecule. है ना, आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बनाता है 4 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनते हैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल में। सो दैट्स व्हाई द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड फेज इनटू द वेपर फेज। क्योंकि जब बॉइलिंग करते हो तो क्या होता है, लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्जन स्टार्ट होता है। तो HF मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ द HF मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आप लिख सकते हैं, आपको कराया भी था हमने कि H2O is a liquid while H2S is gas. You have to explain on the basis of the hydrogen bonding. Water is liquid and H2S is gas. Write the next question. Give reason को हटा के अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिए। एक्सप्लेन, सॉरी एक्सप्लेन तो हो गया, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राइट द एनर्जी लेवल डायग्राम, write the energy level diagram for O2, O2 2 minus charge है, O2 2 plus charge and O2 plus 1 charge. Write the energy level diagram for O2, O2 2 minus charge, O2 2 plus charge and O2 plus 1 charge, and calculate the bond order. Write the next question. What do you understand by the bonding and anti-bonding orbitals? What do you understand by the term bonding and anti-bonding molecular orbitals? How does molecular orbital theory help? How does molecular orbital theory help to explain the paramagnetic character of oxygen? How does MOT help to explain the paramagnetic character of oxygen and diamagnetic character of nitrogen? क्या बताओगे आप? Water bonding orbitals. Bonding orbitals are formed by the constructive addition or construction mechanism or by the addition of the wave numbers. And the energy of this
bonding molecular orbital is less than the combining atomic orbital, whereas anti-bonding orbital is formed by the destructive mechanism or by the subtraction of the wave number of the atomic orbitals. And the energy of this anti-bonding orbital is higher than the combining atomic orbitals. Now, what is the reason behind the difference between the magnetic properties of the nitrogen and oxygen? So, oxygen is paramagnetic and nitrogen is dimagnetic. When you see the molecular orbital diagram of nitrogen, so there are 14 electrons. In case of oxygen, there are 16 electrons. In oxygen molecules, electrons are 16. So 2 electron goes to the anti-bonding orbital, pi anti-bonding 2px and pi anti-bonding 2p5. So due to the presence of unpaired electron in oxygen molecule, the oxygen molecule is the paramagnetic in nature. Whereas in nitrogen, all the electrons are paired. That's why the nitrogen molecule is dimagnetic. Write the next question. What is meant by bond order? What is meant by bond order? Calculate the bond order of NO. Calculate the bond order of NO. B2 molecule, NO molecule, B2 molecule. Cn minus 1 charged molecule. Cn minus 1 charged molecule. Next question. Explain why ice is lighter than water. ये सब हम आपको क्लास में करवा चुके हैं. I have given notes also. Explain why ice is lighter than water. Right, next question. Write short notes on metallic bond, write short notes on number 1 metallic bond, number 2 van der Waals forces. Right, next question. On the basis of electron C model, on the basis of electron C model, explain that metals are good conductor of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. क्यों होता है metals में electrical और heat conduction? It is due to the mobile or free valency electrons, which are free to mobile from one place to other place, and by this movement they conduct electricity and heat. So this is all about the questions related to chemical bonding. इसके अलावा if you have some problem, you can ask
Otherwise, I am going to start the next topic, that is the chemical kinetics. मैम एसपी मिक्सिंग बता देंगे थोड़ा? क्या बेटा? एसपी मिक्सिंग मैम। हम्म? मैम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैम जो एक्सपी मिक्सिंग होती है। क्या होता है? आवाज बहुत एसपी धीमी हो रही है बेटा। हाँ? मैम एसपी मिक्सिंग। एसपी मिक्सिंग ओके, एमओटी में एसपी एसपी मिक्सिंग। मिक्सिंग जैसे HF मॉलिक्यूल में आपने देखा ना, यस मैम। और ये एसपी मिक्सिंग इसी को ही बोलते हैं कि देखिए जहां पर क्या है कि जब कैसे जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मॉलिक्यूल में कैसे होगी कि मैम एक आपका सी, जैसे ये आपका HF मॉलिक्यूल है, तो HF में क्या है कि आपका H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो है वो फ्लोरीन, देखिए व्हेन यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि H के पास देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, H और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p x2 2p y2 और 2p z। ठीक है, अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन फ्लोरीन, यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट ओवरलैप, जैसे s ऑर्बिटल है, दिस s ऑर्बिटल कैन नॉट सक्सेसफुली ओवरलैप विद द फ्लोरीन 2px एंड 2py ऑर्बिटल। समझ गए? क्योंकि जो जैसे आपको क्या बताया था कि जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के क्या जो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे x और p यहाँ पर है आपके जो है वो सक्सेसफुली ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो भी आपके ऑक्सीजन के साथ इस s के साथ मतलब स्फेरिकल शेप के साथ जो न्यूक्लियर एक्सिस पर है, वही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे केवल वही जो है सक्सेसफुली ऑर्बिटल ओवरलैप कर पाएगा। लेकिन जो वर्टिकल और यानी कि वाई और जेड एक्सिस यानी कि वर्टिकल और जो और डायगोनल एक्सिस पर है, वो आपके प्रॉपर्ली ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, इसका डिस्टॉर्टेड शेप हो जाता है। अब क्या है कि जैसे इनके लिए होता क्या है कि सबसे पहले जरूरत किसकी होती है? जो इनकी एनर्जीज होती है ना। जैसे HF मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, लेकिन जो है वो ये परमानेंट मतलब जो 100% ओवरलैपिंग नहीं होती है। जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है? कम होता है। जैसे HF में कितना होता है? इट इज अबाउट 88%, क्योंकि जो H S यहाँ पर S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल, तो ये P ये मतलब केवल आपके जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे वही, लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा होने की वजह से ये अपनी एनर्जीज, यानी कि जैसे इसकी S की एनर्जी कितनी है और एनर्जीज आर गिवन, इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जीज जो आपको दी हुई है, आपके पास PDF है बेटा? क्या मैम? हेलो, जो PDF सेंड किया था वो भी ओपन कर, आप खोल के देखो जरा। इस PDF में आप देखिएगा जो एक HF में एक्सप्लेन किया है। देखिए आयोनाइजेशन जो लिमिट्स होती है ना, अगर ये एनर्जीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, देन देयर इज नो ओवरलैपिंग। जब ये इतना डिफरेंस है कि दे कैन ओवरलैप, लेकिन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें जो है बॉन्डिंग जहां पर भी आपका, जब ये क्या होगा, जब आपका जो एक एक मॉलिक्यूल, ये हमेशा sp ओवरलैपिंग कहाँ पर होगी? जो आपके डायटोमिक हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स, डायटोमिक हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है, उन्हीं केसेस में क्या होगा? फॉर्मेशन मतलब sp ओवरलैपिंग होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? sp मिक्सिंग। ये आयोनाइजेशन एनर्जीज के अकॉर्डिंग देयर इज द मिक्सिंग, क्या मतलब क्या होगा? ओवरलैपिंग। तो जब भी sp मिक्सिंग होती है या sp ओवरलैपिंग होती है, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स होते हैं, उनका जो शेप होता है दैट इज दी डिस्टॉर्टेड शेप, और वो अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी जो जो आपके वेव नंबर्स हैं है ना, जैसे साई एक वेव नंबर के, साई एक ऑर्बिटल का हाइड्रोजन का मान लीजिए साई H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसको हम साई जो है वो F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन जब इनमें होगा, तो क्या होगा? इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो है ये इनमें मिक्सिंग होगी। लेकिन
जो मिक्सिंग का जो रेशियो होगा ओवरलैपिंग का, वो जो 100% ना होके इट विल डिपेंड ऑन दी कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जैसे HF में क्या होता है, सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए 88% तक ही जो है वो बॉन्डिंग इसमें हो पाती है। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें, दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। I request to one student, please share it on the screen. Ravi, please share your screen. मैम Which PDF, ma'am? Today's PDF. PDF lesson today of the chemical kinetics. So next unit is the chemical kinetics. It is also known as the reaction dynamics. ठीक है, तो what is actually chemical kinetics? Chemical kinetics is actually the branch of the chemistry basically deals with the physical chemistry. You know the chemistry is divided into three parts. Aman Gupta, unmute yourself. So chemistry is basically divided into three. जो basic broad classifications हैं वो क्या है? Physical, organic और inorganic chemistry. So this chemical kinetics basically deals with the physical chemistry, or it is the branch of the chemistry which deals with the study of rate of chemical reactions and the mechanism by which they occur. Rate of chemical reaction. Rate का मतलब क्या हुआ कि कितने स्पीड से, कितने वेलोसिटी से रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रहा है, एंड उस रिएक्शन प्रोसीजर के लिए, रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन अकर, और बाय थ्रू व्हिच मैकेनिज्म द केमिकल रिएक्शन अकर. दे ऑल combinedly the study of all these factors comes under the chemical kinetics. सो रिएक्शंस को देखिए, फास्ट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस, और जो है वो एक आपके मॉडरेट स्पीड पे जो रिएक्शंस चलते हैं, तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है. तो फास्ट रिएक्शंस क्या होते हैं? फास्ट रिएक्शन मींस द रेट ऑफ रिएक्शंस इज वेरी फास्ट इन दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस. रेट ऑफ रिएक्शन का भी आपको बताते हैं. जैसे फास्ट रिएक्शन में आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेसिस, एक्सप्लोसिव रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन, hydrocarbons, these all reaction comes under the instantaneous or fast reactions. Slow reactions क्या होते हैं? which proceed at a very slow speed, और slow speed इतना कि इनको मेजर ही ना कर पाए, मतलब दोबारा उनको यू कैन नॉट मेजर, इतना स्लो स्पीड से चलते. एंड मॉडरेट स्पीड से, यानी कि जिन मॉडरेट का मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन which proceed as a measurable speed, जिनकी स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं. हेलो, like the inversion of Yes, cane ma'am. sugar, saponification of ethyl acetate. ठीक, जो ये ऑल थ्री रिएक्शंस हैं. हेलो, 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 am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, These ma'am. study of these reactions comes under the chemical kinetics. Yes, ma'am. There is time lag actually. So what is the rate of reaction? So first of all the question arises, what is this rate or velocity of reaction? देखिए, what is reaction? Reaction में क्या है? Two or more than two reactants, two or more than two chemicals react or combines to give a product. This is a chemical reaction. तो दो केमिकल या दो से ज्यादा जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? दोज आर कॉल्ड रिएक्टेंट. And after the reaction of these reactant, the product is formed. So as the reaction proceed, concentration of the reactant will decrease
भाई स्टार्टिंग में आपने जितना जो कॉन्सेंट्रेशन लिया है, जैसे सिंपल से एग्जांपल आपको दें, इफ यू डिसॉल्व शुगर इनटू वाटर, ठीक है, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करो, तो यू हैव टू रिएक्टेंट, शुगर एंड वाटर, और जब उनको हेलो जब वो कंटिन्यूअस डिसॉल्व हो जाएगी शुगर कंप्लीटली, तो क्या बन गया आपका स्क्वैश, ठीक है, स्क्वैश बन गया, शुगर सिरप बन गया, यू कैन से इट इज शुगर सिरप। रिएक्टेंट्स क्या थे, वाटर एंड शुगर, एंड द प्रोडक्ट इज स्क्वैश। तो जब स्टार्टिंग में व्हेन यू टेक शुगर एंड वाटर, तो क्या होता है, वाटर तो कॉन्सेंट्रेट मतलब कांस्टेंट रहेगा, बट द अमाउंट ऑफ शुगर जितना स्टार्टिंग में था, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही शरबत बनना शुरू होता है तो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, और स्टार्टिंग में जब इनिशियली व्हेन यू टेक इन द शुगर एंड वाटर, देन देयर इज नो स्क्वैश, नो अमाउंट ऑफ स्क्वैश, बस एट द टाइम प्रोसीड शुगर डिसअपियर्स, एंड द फाइनली आपका क्या होता है, पूरा स्क्वैश बन के तैयार हो गया, बट शुगर इज डिसअपियर्ड, डिसॉल्व हो गया। अब उसको वाटर और शुगर तो नहीं बोलोगे ना, स्टार्टिंग में जब लिया इट इज वाटर एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, बट बाद में जब आप यू हैव means when you drink it, then you call it a sweet squash. So this is the chemical reaction. तो हुआ क्या कि reactant की concentration decrease और product की concentration time के साथ बढ़ गई. So rate of reaction क्या है? The speed at which the reaction proceeds. Hello, and what is this speed? Hello? अमन गुप्ता, अब मैं एंट्री नहीं दूंगी क्लास, यू आर डिस्टर्बिंग द क्लास। हेलो, सो रेट स्पीड और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, लेट मी वेट फॉर मिनट बेटा, लेट मी रिमूव अमन गुप्ता। मैम कुछ पूछ रहा है वो, उसकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं पूछ नहीं रहा, उसके घर के पीछे से भी आवाज आ रही है, डाउट है कुछ, लेडी वॉइस आ रही है कोई, कभी हॉर्न की आवाज आती है, कभी किसी लेडी की आवाज आ रही है, वो नहीं कुछ पूछ रहा है, उसको पूछना होता तो लिख के भी पूछ चुका होता। अभी मीटिंग उसने लेफ्ट करी थी, आगे दोबारा ज्वाइन कराया मैंने। So speed of a reaction, the decrease in the concentration of reactant with respect to time or increase in the concentration of product with respect to time is called as the speed or rate of reaction. So what is rate of reaction? The quantity of reactant species consumed or the quantity of the product species formed in unit time in a chemical reaction is called as the rate of reaction. So you can see the page number 1 of this PDF, the rate of reaction. The reaction is given represented by A, which is converting to the product B. So rate of reaction. When you write the concentration of any reactant, तो उसको कैसे लिखते हैं? Large bracket में लिखते हैं. So minus delta A upon delta T. Delta A is the change in the concentration. Delta T is the change in the time. Minus sign representing the decrease in the concentration of reactant with respect to time. Time के साथ कितना concentration जो है वो decrease हो रहा है. And plus or rate of reaction can also be expressed in terms of the product. तो product के terms में plus delta B upon delta T. B written in the bracket or parenthesis is the concentration of the product. So with the time, the concentration of product increase, and plus sign representing the increase in the concentration of the product. So rate of reaction is either rate of reaction is actually the decrease in the concentration of reactant with respect to time, or the increase in the concentration of the product with respect to time is called as the rate of reaction. You can see in this graph
that with respect to time, the product concentration will increase and reactant concentration will decrease. So rate of reaction can be expressed in terms of the product. जैसे rate of reaction, ये reaction time जो हमने बॉक्स पे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, फर्स्ट पेज पे देखिए, दिस इज अ रिएक्शन, A is equal to B. टाइम t is equal to 0 पे the concentration of reactant A की क्या है, स्मॉल a, और स्टार्ट नहीं हुआ उस समय प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी. बट आफ्टर टाइम t जो प्रोडक्ट कितना बन गया हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बिकम्स x. ठीक है, कितना प्रोडक्ट बन गया, x. तो A की कॉन्सेंट्रेशन कितना बची, the remaining concentration of reactant will be A minus x. So rate of reaction can be represented in the form of minus d into A minus x over dt or dx over dt. So in terms of product, rate of reaction will be dx over dt, but in terms of reactant, it will be minus dA minus x over dt. ठीक है, ये रेट इक्वेशंस है, ये आपके पहले वी विल हैव टू डिस्कस सम फैक्टर्स. थर्ड पेज पे आ जाओ बेटा. सम फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. Come to the third page of PDF. There are some factors which actually affect the rate of reaction. Effect of rate of reaction यानी कि जिसकी वजह से rate of reaction या तो increase होगा या decrease होगा. इसी में extent में ये rate of reaction को क्या करेगा, affect करेगा. These factors are, पहला जो है concentration of the reactant. ठीक है, concentration of reactant. Concentration of reactant, देखिए rate of reaction is actually influenced by the number of collisions per second between the reacting molecule. कैसे product form होता है, by reactant molecule कैसे react करके product में convert हो जाते हैं. When there is a reaction between the reactant molecule, there is collision between the reactant molecule, और वो कोलाइड करते करते अपनी एनर्जी क्या कर देते हैं. बेटा इसके भी नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इसके बाद वाले पेज पे आओ पहले. तो होता क्या है कि देखिए जब आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जब क्या व्हेन रिएक्शन होता है, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए यू विल हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी. ठीक है, तो एनर्जी के लिए इधर हीट और लाइट, कोई तो एनर्जी देंगे, या तो हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में. रेडिएशंस के फॉर्म में, लाइट का मींस होगी रेडिएशंस के फॉर्म में. तो व्हेन एनर्जी प्रोवाइडेड टू द मॉलिक्यूल, तो द कोलिजन जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल स्टार्ट्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. तो जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो दे लूज देयर एनर्जी. ठीक है, और वो क्या होता है, नए जो है वो कोलिजन के थ्रू क्या होता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना. और इसके लिए भी आपको आगे पढ़ाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट थ्योरी जिसको बोलते हैं, और कोलिजन थ्योरी भी है कि कोलाइड करते करते मॉलिक्यूल जो है वो उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, दे कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. तो जैसे मींस अगर मतलब शॉर्ट में आप समझो कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उतना ही जो है वो प्रोडक्ट जो है वो आपका फास्टली फॉर्म होगा. ठीक है, उतना ही एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी, उतनी जल्दी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. तो नंबर ऑफ कोलिजन्स किस पर डिपेंड करेगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, कोलिजन्स होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी. सो concentration of reactant indirectly related to the product concentration.
because as there is more number of reactant molecule, the number of collisions will be more, and that will increase the number of collisions, means the rate of reaction जो है वो increase हो जाएगा, product जो है वो जल्दी form हो जाएगा, means less time will be required to convert the reactant into the product. So you can say that rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. What is the relationship between the rate of reaction and concentration of reactant? Directly proportional. जितने ज्यादा नंबर ऑफ concentration, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना ही जो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर. नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ रिएक्टेंट. देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या है कि what actually occurs during the formation of the product, the rearrangement of bonds, है ना? क्या होता है rearrangement of bonds? Old bonds are broken and new bonds are formed. Means the bond rearrangement occurs during the formation of product or during a course of a chemical reaction. So कोई भी reactant molecule, nature से मतलब क्या है? The molecule which require lesser bond rearrangement will proceed the reaction at faster rate as compared to the molecule have the larger bond rearrangement. यानी कि कोई ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसका नेचर कैसा हो कि जो बॉन्ड रीअरेंजमेंट के लिए क्या है, जो means lesser bond arrangement will be required to convert into the product, that reaction will proceed more faster as compared to the molecules required the larger bond rearrangement. Next is the effect of catalyst. ठीक है, catalyst क्या होते हैं? Catalyst generally are the compounds which when added any chemical reaction they alter the rate of reaction. जो डिक्रीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैटलिटिक पॉइजन. और जो इंक्रीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैटलिटिक प्रमोटर्स. ये एक्स्ट्रा कंपाउंड होते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, है ना? जो कैटलिस्ट रिएक्शन को बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को सप्रेस करते हैं उनको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं. एंड इसके अलावा कुछ अदर कंपाउंड जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, सप्रेस करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द कैटलिटिक प्रमोटर एंड पॉइजन. सो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिसिस, एक्चुअली पॉजिटिव कैटलिसिस का मतलब क्या है कि कैसे कोई कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है, बढ़ाता है, कि इट प्रोवाइड्स जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं. कैटलिस्ट जो है वो स्पेस का मतलब क्या है यहाँ पर? जो एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड और इनिशिएट एनी रिएक्शन. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द reaction is called the activation energy. So जो catalyst होते हैं, catalyst actually provide the alternate path to convert the reactant into the product, यानी कि activation energy को कम कर देते हैं. So less energy is required to convert the reactant into the product. So the rate of reaction faster. Next is the effect of surface area of the reactant. सरफेस एरिया किस केस में? जैसे हेट्रोजीनियस रिएक्शंस क्या, जहां पर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट होते हैं डिफरेंट फेज में होते हैं, दोज आर कॉल्ड द हेट्रोजीनियस रिएक्शंस. सो सरफेस एरिया हेट्रोजीनियस रिएक्शन में प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्यों? एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द सेम मास इंक्रीजेस. जैसे जैसे पार्टिकल साइज जो होता है आप इंक्रीज करता है, सरफेस डिक्रीज करता है पार्टिकल साइज. जितना स्मॉल होता जाएगा उतना ही लार्ज सरफेस एरिया हो जाता है ना? तो लार्ज सरफेस एरिया क्या करेगा? दैट विल प्रोवाइड मोर स्पेस. सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ जो रिएक्टिव पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो पाएंगे सरफेस पे. दैट्स व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन में सरफेस एरिया की वजह से बढ़ जाता है. ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया मींस फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, द स्मॉलर पार्टिकल्स जस्ट रिएक्ट मोर रैपिडली देन द लार्जर पार्टिकल्स. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल डस्ट इन एयर टेक प्लेस मोर रैपिडली देन दैट ऑफ लार्ज लम्प्स ऑफ कोल. यानी कि अगर हम कोल की डस्ट को जब एयर में बर्न कराते हैं तो बहुत तेज से जलती है एज कम्पेयर टू बड़े बड़े जब पीसेस होते हैं कोल के. क्यों? क्योंकि जो लार्ज सरफेस जो जब उसको पाउडर फॉर्म में कर देते हैं
कोल को डस्ट फॉर्म में कर देते हैं, देन इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, दैट बाय द रिएक्शन मींस एयर के प्रेजेंस में इग्निशन होता है, दैट बिकम्स फास्ट। नेक्स्ट फैक्टर इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने में भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो है वो ये टेम्परेचर इफेक्ट में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, जब रिएक्शन पे टेम्परेचर इफेक्ट पढ़ाएंगे तब ये फैक्टर जो ये टेम्परेचर इफेक्ट जो है डिटेल में आपको पढ़ाते हैं। तो रेट ऑफ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर। और टेम्परेचर जो कोफिशिएंट एक्चुअली जो है वो दैट डिफाइंस द टेम्परेचर कोफिशिएंट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए जैसे किसी रिएक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस रेट बढ़ाने से वो रिएक्शन डबल और 4 टाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है ना। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लाइट और इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो देयर आर सम रिएक्शंस which occur in the presence of light or radiation. Those reactions are called as the photochemical reaction. देखिए रिएक्शन जो है वो दो तरीके से चलते हैं, एक तो डार्क रिएक्शन which are also called as thermal reactions, और दूसरे जो है आपके photochemical reaction which occurs in the presence of light or radiation. तो नेचर ऑफ लाइट में भी क्या है कि कुछ रिएक्शन, कुछ देयर आर सम फोटोकेमिकल रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स एज वेरी वेरी फास्टर रेट। तो उसमें जो जैसे रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। सो मींस फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए देयर इज ए स्पेसिफिक लाइट। स्पेसिफिक लाइट क्यों है, क्योंकि एवरी स्पेसिफिक लाइट का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक वेव नंबर और एनर्जी। What is the relation between the wavelength and energy? E is equal to sc upon lambda. So particular wavelength की लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी वो प्रोवाइड करेगी रिएक्टेंट को टू रिएक्ट। So these effect of light में तो reactions which occur in the, there are some reactions which occur in the presence of the radiation or light. Those reactions are called as the photochemical reaction. These reactions, there are some photochemical reaction which occurs at very very fast rate, and their rate is expressed in terms of the quantum heat. तो ये फोटोकेमिकल, आपका फोटोकेमिस्ट्री एक अलग से चैप्टर है जिसमें हम ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स. So I have a next class in continuation with this that will start at 11 AM. Okay, so that's why I am going to stop the class this time. बेटा इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में जब वेलोसिटी कांस्टेंट पढ़ाएंगे तब ये जो वाला पोर्शन जो आप दिखा रहे थे ना, रिएक्शन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड टाइम, इसको जो है वो इसको जो है वो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करके फिर रेट कांस्टेंट, उसके बाद जो है डिफरेंट रेट इक्वेशंस लाइक द फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ये सब पहले रेट एंड ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी सब बता के देन स्टार्ट विद द रिएक्शन. ओके, सो नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट means next class day tomorrow we'll start with the relation between reaction rate and time. So this is over for today. Okay beta, Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. God bless Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay beta, okay bye. Thank you, ma'am. Welcome beta. समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत अच्छे से.